छोटी सी बात से दुनिया से भिजवा दिया इन लोगों ने। जहाँ तक हो सकेगा, जब तक मेरी ज़िंदगी में पूरा लड़ूंगी। इसकी वजह से मेरे बच्चे यतीम हो गए। तो मेरे बच्चे चीखे मार मार के अपने पापा को याद करते हैं, छोटे छोटे से। इसने मेरा घर उजाड़ दिया, हंसता बसता। मैं इसे फांसी के फंदे पे चढ़ाना चाहती हूँ। मेरी तो कोई विच गल है ही, मेरे को उन्होंने दुश्मनी नहीं, मेरा कि उन्होंने लेना देना, मैं ना जा। शर्मिंदगी है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन बस गुस्सा आया, मारता है बस। मौके पे जिस वक्त गए जो मकतूल अब्दुल वहीद है, उसको फैर लग चुका था। इंशाल्लाह ये केस बहुत मजबूत है, इसको फांसी होगी। APNN की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। पाकिस्तानी गुलकारा शबनम मजीद के भाई अब्दुल वहीद को कत्ल कर दिया गया। उसको कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का साला देन अब्बास था। देन अब्बास कहता है कि उसकी बहन बुशरा बीबी को मारा पीटा जाता था, जिसकी वजह से उसने अपने बहनोई को कत्ल कर दिया, जबकि बुशरा बीबी ने कहा कि उसका खामद उसको कोई मारता पीटता नहीं था। तो फिर जानते हैं वजह कि ये कत्ल क्यों हुआ और कातिल ने मकतूल को क्यों कत्ल किया। जी मेरे साथ इस वक्त इस केस के वो मुलजिम मौजूद हैं, देन अब्बास और अरसलान। इनसे पूछते हैं कि किस तरह से कत्ल किया, किस तरह से तुमने मारा था। बस मैंने फ़ोन करके बुला के कमेट अपने भाई के बारे में बात करके मैंने मार दी गोली से। वजह क्यों मारा था? वजह यही थी कि हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। पापा मेरे प्यो ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪਿਓ ਨਾਲ ਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ, ਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਇੰਜ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ। ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਸਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਹ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਤੇ ਰੋਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸਰ ਜੀ। ਪਿਓ ਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਕਿਵੇਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਦਾਇਆ ਸੀ? ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈਓ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸਾਂ ਨਾਲ। ਅਰਸਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਅਰਸਲਾਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਨ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ? ਪਿਸਤੌਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੀ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਨ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀਓ ਝਗੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਈਦਾ, ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਰਾਵਾਂ ਸਕਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਈਦਾ, ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਈਦਾ। ਮਾਰ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਿਓ ਕੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਰਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਡੱਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਿ ਨਾਮ ਮੁੰਸ਼ੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਾਰੀ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਜੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਜ਼ਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਹੱਥਕੜੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਮਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਸਕੂਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਹਿਨ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। तो उनके जुर्म है दोनों ने फड़े हथकड़ी के वास्ते लगी है? बस ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਸਨ। सिर्फ इस वजह तो लगी है? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅਰਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤੀ ਜ਼ੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ੈਨ ਸੁਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ੈਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਵਸ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੈਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਬਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ, ਮਾਸੂਮ ਆਦਮੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ੈਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸਲਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਰ- ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਡੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੈਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਰਾ ਜੁਰਮ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸੂਮ ਹੋ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਬੇਗੁਨਾਹ। ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੌਲ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਅਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਜ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕਜ਼ਨ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਕਬਾਲ ਟੋਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦਾਨਿਸ਼, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਸੁਬਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਲਾਫੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਮਾਰਤਾ ਬਸ। ਯਾਰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਮਾਰਤਾ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਗੈਰਤ ਦੇ ਆਦੇ ਅਫਸਾਨੇ ਸੁਣਾਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਐਡਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। बस गैरत से आके कीता है। जी मेरे साथ इस वक्त तमगा इम्तियाज़ याफ्ता पाकिस्तान की बेहतरीन गुलकारा शबनम मजीद साहिबा मौजूद है, तो इनसे पूछते हैं कि मैम बेशक आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान था, बड़ा खसारा हो गया, तो ये किस तरह से उनको कत्ल किया जाएगा? मेरा भाई जो वहीद भाई थे, सबसे पहले तो ये है कि वो मेरे दोस्त भी थे, मेरे बाप, मेरी माँ, सब कुछ थे वो मेरे। और ऐसे शख्स को छोटी सी बात से दुनिया से भिजवा दिया इन लोगों ने। इन लोगों के साथ भी इतना प्यार मोहब्बत, इनको शफ़क़त का हाथ इनके ऊपर रखा, जिसका नाम देन अब्बास है, शहज़ाद ने गालियाँ निकाली। मेरे भाई ने हमें कॉल की कि मुझे रात को नींद नहीं आती, शहज़ाद ने मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ निकाल दी हैं। और वो भी इसकी बहन बुशरा जो थी वहीद भाई की जो वाइफ थी, वो वहाँ गई है और उसने कहा कि जी मेरे साथ लड़ते हैं झगड़ते हैं ये वो फलां, मैंने नहीं इनके साथ रहना, मैंने तलाक़ लेनी है। उस लड़के ने फ़ोन उठा के तो वहीद भाई को गालियाँ निकाली शहज़ाद ने, और शहज़ाद ने कहा कि मैं अब धमकियाँ लगाई कि मैं तुम्हें गोलियाँ मार दूँगा ये। उसके बाद ये वाक़या हुआ कि दीन अब्बास ने अपनी बहन जो थी वो उनके साथ थी वहीद भाई के साथ, इनको फ़ोन करके धोखे से बाहर बुलाया, बाहर बुला के और सर पे गोली मार दी पीछे से। और उनके साथ बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि जुल्म किया इन्होंने, और सबसे बड़ा जुल्म हम पे भी इन्होंने कर दिया, एक बहन पे, उससे उसका भाई छीन लिया। मैं अपने भाई के लिए पूरा जहाँ तक हो सकेगा, जब तक मेरी ज़िंदगी में पूरा लड़ूंगी और इनको फांसी के तख्ते पे लटकाऊंगी इंशाल्लाह। और जिसने गालियाँ दी हैं और जो लुबना है शहज़ाद के साथ, जिस औरत ने के कहने पे ये सारा कुछ हुआ। लुबना कौन है मैम? जी शहज़ाद की वाइफ है। अच्छा। उसकी पहले से वो शादीशुदा औरत थी, उसके 5-6 बेटियां मतलब बच्चे हैं, जवान है जो, तो इसने शहज़ाद जो कि इसके बच्चों की उम्र का है उसके साथ शादी की है और इनको बरगलाया इसी औरत ने है, क्योंकि पहले इन्होंने कभी इस तरह की कोई बात नहीं की। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, बहुत सपोर्ट थी उनकी, मुझे गाने का तरीका भी बताते थे, खुद बहुत अच्छा गाते थे, कंपोज़र बहुत अच्छे थे, शायर बहुत ही अच्छे थे। एक फिर उन्होंने शेर लिखा था कि एक वड्डा एक छोटा दोवें जीण मेरे वीर, दोवें वीर मेरे भैन दे ने प्यार दी जागीर, वड्डा चाहने ते छोटे जा तारा कोई नहीं, मैनू बाबला तेरे जा प्यारा। जी मेरे साथ इस वक्त मकतूल की बेगम मौजूद हैं, बुशरा बीबी, तो उनसे पूछते हैं कि आपके लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है, खावन को कत्ल कर दिया आपके भाई ने। आपके भाई का ये कहना था कि उसने इस वजह से मारा चूँकि वो आप पे जुल्म करता था, वो आपको मारता पीटता था। क्या वो वहीद साहब आपको मारते थे? सर वो घर में झगड़ा तो हर मियाँ बीवी का होता है, तो एक दो दफ़ा उन्होंने
मारा अब घर में होता है झगड़ा, लेकिन इस तरह नहीं कभी किया था कि तशद्दुद करते थे, इस तरह नहीं करते थे। आपस में बस हमारा झगड़ा होता था तो वो भी जल्दी सुलझ जाता था, सुलह सफाई हो जाती थी। मैं उनके बगैर नहीं रहती थी। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती थी। इन्होंने जानबूझ के किया जो किया, इन्होंने बस आके हमें मारा। दोनों मियाँ बीवी को धोखा दिया इसने। सब झूठ बोलता है, ये कुछ भी ऐसी बात नहीं है। गुस्से में उन्होंने फ़ोन पे बदतमीज़ी की उसके साथ, लेकिन उन्होंने माफ़ी उसने मांगी। उसने कहा भाईजान भाजी मैं नहीं आइंदा तो बात करांगा ताना ऐसा। मैं उनमें कि मैं ये नहीं कह सकती कि इनका प्लान है, मुझे नहीं इस बात का पता। इसने मेरे सामने जो है मेरे भाई ने कत्ल किया, इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इस ये माफ़ी को कोई हकदार नहीं है। मेरे मियाँ को इसने कत्ल किया है, मैं भी इसका कत्ल चाहती हूँ, मैं भी इसको फांसी पे चढ़ाना चाहती हूँ। इसकी वजह से मेरे बच्चे यतीम हो गए। वो मेरे बच्चे चीखे मार मार के अपने पापा को याद करते हैं, छोटे छोटे से। हिम्मत के साथ बता दें कि उस दिन हुआ क्या था एग्जैक्ट। इन्होंने अरसलान और देन अब्बास आए थे आपके घर पे, तो क्या माजरा उस दिन बना था? घर पे नहीं आए थे, इन्होंने फ़ोन करके बाहर बुलाया था। तो ना मैं और मेरे मियाँ ने घर मेरे सामने बात नहीं की। बाहर जब आए हम, उन्होंने कहा तेरा भाई आया हुआ है। मैंने कहा अच्छा जी। मेरे मियाँ और मैं इसके पास गए हैं, इसको बुलाया है। इसको दोनों ये खड़े थे, इन दोनों को बुलाया उन्होंने, मेरे भाई को बुलाया है। तो क्या कहता है कि भाईजान मैं कमेटी, मेरा जो छोटा भाई है ना मेरे से, उसकी बीवी के घर इसने कमेटी डाली हुई थी, कमेटी की बात करने आया है। तो मेरे मियाँ ने कहा है कि बेटा अगर तेरी बहन खड़ी होगी ना तो मैं भी तेरे साथ हूँ, तो फिर हम कमेटी लेके देंगे तुझे। तो मैंने अपने मियाँ को कहा कि मैंने नहीं इसके पीछे खड़े होना, मैं क्योंकि उसको बुलाती नहीं थी, मैं अपने भाई को नहीं बुलाती थी। जबकि मेरी शादी है, मेरा इनसे मिलना जुलना बहुत ही कम था। मैं सिर्फ अपनी अम्मी अब्बू को मिलती थी, इनको नहीं मिलती थी भाइयों को। तो मैं ये उस दिन आया, मेरे मियाँ ने इसे बड़ा प्यार से बोले हैं, मैं भी बड़े प्यार से बोल रही हूँ, कोई झगड़ा नहीं हुआ हमारा। इसने भी आके, अब मेरे मियाँ ने कहा इसको क्या आप जाओ सुबह आना, सुबह बात करेंगे। तो ये इसने पीछे से आके तो गोली मार दी। इसने बस आके हमें गोली मारी। इस केस की इत्तला आपको कैसे मिली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इस केस की इतला हमें ऐसे मिली जी, 15 पे कॉल हुई है। जैसे ही कॉल हुई है हम फौरी मौके पे गए हैं। मौके पे जिस वक्त गए जो मकतूल अब्दुल वहीद है उसको फायर लग चुका था। उसको हमने फौरी अपनी गाड़ी में डाला है, गाड़ी में डाल के हम हॉस्पिटल लेके गए हैं, लेकिन वो रास्ते में जाते हुए डेथ फौत हो गया। उसके बाद फिर हम मुलज़िमों के पीछे डेड बाई जो ज़ाब्ता कार्रवाई थी हमने की करके, उसके बाद हमने मुलज़िमों के पीछे लग गए। तकरीबन सारी रात हम लगे रहे हैं, कभी किधर कभी किधर कभी किधर। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश के बाद हमने मुलज़िमों को पकड़ लिया। अच्छा, मुलजिमों की इत्तला कैसे मिली थी कि ये मुलजिम है? मुलज़िमों की इत्तला ऐसे मिली जी, जो मकतूल के साथ उसकी बेगम थी, मकतूल के साथ उसकी बेगम बुशरा बीबी है, उसने बताया था कि मेरा भाई है दीन अब्बास, और एक उसका दोस्त है जो उसका कज़न भी लगता है, दोस्त भी है, अरसलान नाम है उसका। तब हम इनके पीछे लगे थे। अच्छा सर, तफ्तीश में क्या पता चला, क्या वजह थी इसको कत्ल करने की? वजह फ़िलहाल तो यही सामने आ रही है जी। वो कहता है बीवी का और उसका आपस में झगड़ा रहता था, जो आए दिन नाराज़ होकर मेके आ जाती थी, हम फिर छोड़ आते थे, फिर मेके आ जाती थी। इंशाल्लाह ये केस बहुत मजबूत है, इसको फांसी होगी इंशाल्लाह। और सर दोनों तरफ से कोई ये सुलहनामा वगैरह या कोई? नहीं, कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं है। सर आला कत्ल क्या था, बरामद हो चुका है या नहीं? और आला कत्ल इसमें मौजर इस्तेमाल हुआ है जी। वो इंशाल्लाह मुलज़मान हमारे पास रिमांड पे हैं, वो इंशाल्लाह इसी दौरान रिमांड इंशाल्लाह बरामद करेंगे। ऐसी मुझे समझ नहीं आती कि इस तरह की कैसी गैरत थी कि इसने अपनी बहन को घर नहीं बिठाया। उसको अगर गैरत थी कि उसको घर बिठा लेता और उसको खाना पीना और उसको रोज़ी रोटी देता, ना कि उसके बंदे को कत्ल करने के बाद उसके बच्चों को यतीम कर देता और उसको बेवा बना देता। इसी के साथ ज़िशान चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।